ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਸਹੀ ਮੂੰਹੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਧੀਆ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਰੂਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਗੋਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं थोड़ी-सी इस चीज़ को लेकर परेशान थी कि पता नहीं मेरी गुड़िया का बिहेवियर कुछ दिनों से बहुत चेंज है। वो थोड़ा अलग-सा बिहेव कर रही है और पता नहीं क्यों कर रही है। भगवान जाने, गुरुजी जाने कि ये क्या चीज़ है, क्या है, क्या नहीं है, मुझे नहीं कुछ भी समझ में आ रहा। नहीं तो पहले वो बहुत ही ओबीडिएंट थी, अच्छी थी, बात मानती थी और पता नहीं इसे क्या हुआ है। बस गुरुजी आप ही देखो इसको क्या करना है, अगर कुछ गलत हुआ है इसके साथ तो आप ही ठीक करो गुरुजी, मैं आपके आपके ऊपर छोड़ती हूँ सारी बात। आपने ही देखना अपनी बच्ची को कैसे ठीक करना है। और पहले वो बहुत ही थोड़ी डिसेंट हुआ करती थी, अब पता नहीं बहुत उल्टे-उल्टे जवाब देती है, अच्छे से बिहेव नहीं करती है। पता नहीं मुझे भी कई बार टेंशन तो होती है कि पता नहीं इसको नज़र लगी है या फिर क्या है, क्या नहीं है। बाकी वैसे वो गुरुजी को तो बहुत मानती है, दिल से मानती है और गुरुजी की बातें भी करती है। तो गुरुजी आप देखो इसे कैसे ठीक करना है, इसे नॉर्मल कर दो और थोड़ा-सा उसका हेल्थ भी ठीक करो, उसकी हेल्थ भी थोड़ी बहुत ज़्यादा है, इतनी होनी नहीं चाहिए। तो बस जिस हिसाब से उसकी एज है थोड़ा-सा उसको थोड़ा-सा होना चाहिए। तो बस गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ, आपकी बच्ची है, आपने देखना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। अनंतम-अनंतम शुकराना। आज मैं सुबह अपनी बेटी के साथ उसकी पीटीएम अटेंड करने गई थी, तो रास्ते में गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। एक तो गुरुजी ने वेदर बहुत अच्छा कर दिया। पहले तो बहुत तेज़ धूप थी, जैसे कि हम निकले तो बहुत अच्छा मौसम हो गया और हम स्कूल गए, उसकी मैम से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और गुरुजी ने पूरे रास्ते अपनी एंजल नंबर की ब्लेसिंग भी देते रहे। कभी 4 टाइम्स 4, कभी 6 6, कभी डबल 7, कभी ट्रिपल 7, फिर डबल 7। तो ऐसे ही गुरुजी ने अपने एंजल नंबर से बहुत बार ब्लेस किया। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी हमारे अंग संग रहने के लिए। संगत जी आजकल ये बच्चे थोड़े-से हो गए हैं कि एक डॉल मार्केट में बहुत आ रही है, बहुत चली हुई है, लाबूबू डॉल मैं इसका नाम बता रही हूँ। तो पता नहीं इस चीज़ का बच्चों को थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है कि लाबूबू डॉल समथिंग, लेकिन सुनने में तो आ रहा है ये कोई मतलब नॉर्मल डॉल नहीं है, ये चाइना की कोई थोड़ी अजीब-सी डॉल है। मतलब वहाँ की कोई प्रेत आत्मा समथिंग यही सुनने में आ रहा है। तो मुझे लगता है पता नहीं जब से ये डॉल हमारे घर में आई है तब से मेरी गुड़िया का नेचर भी थोड़ा चेंज हो गया। तो गुरुजी देखना आप ये क्या है, क्या नहीं है, अगर ये ठीक है तो ये कल तक हमारे घर में रहे, नहीं तो गुरुजी आप इसे किसी न किसी तरीके से घर से बाहर निकलवा दो। मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी। बच्चे हैं थोड़े ज़िद कर लेते हैं, मानते नहीं हैं चीज़ों को, लेकिन गुरुजी आप तो सब जानते हैं क्या हमारे लिए ठीक है और क्या हमारे लिए गलत है। आप देखना गुरुजी, मुझे अपनी बच्ची के बिहेवियर में बहुत चेंज लग रहा है, मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम-अनंतम शुकराना। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी आपको ढेर सारा प्यार और जय गुरु जी। ये शुकराना सत्संग गुरुपा मेरी मम्मी की तरफ से आपके चरणों में गुरुपा, क्योंकि संगत जी सॉरी सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी संगत जी, हम मंत्र नहीं बोल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा 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 ही सहाय। तो मेरे गुरुपा और संगत जी, ये जो शुकराना सत्संग है स्पेशली मेरी मम्मी की तरफ से है, गुरुपा के चरणों में, क्योंकि एक सत्संग आज आया था जिसमें ये हेडलाइन था कि ये सत्संग सुन, मैंने तेरे लिए ही भेजा है। वो सत्संग हम सुने संगत जी, उसमें उसमें भी 3-4 तरह का सत्संग था, जैसे कि हमेशा रहता है। तो जो फर्स्ट सत्संग था वो हमको अभी याद आया जस्ट सोच के कुछ और आए थे लेकिन निकल रहा है यही, कि जो फर्स्ट सत्संग था उसमें जो संगत जी थी वो गुरुपा को बहुत-बहुत शुकराना कर रही थी, क्योंकि गुरुपा उनकी मम्मी को ब्लेस किए थे। उनकी मम्मी का एज 60-65 जैसा था, लेकिन उनके घुटनों के कारण वो जो चलती थी, वो सही से चल नहीं पाती थी। वो ऐसे चलती थी जैसे कि 90-95 वर्ष की कोई बहुत बूढ़ी लेडी चल रही हो। बहुत एक्टिव टाइप से नहीं चल पाती थी, क्योंकि उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, वो संगत जी की मम्मी के घुटनों में। तो वो संगत जी के भाई जो थे, वो उन्होंने अपनी मम्मी का घुटनों का ऑपरेशन करवाए थे। एक एक नी का रिप्लेसमेंट करवाए थे, इस तरह का वो सत्संग में था।
लेकिन उसके बाद संगत जी जब करवाना था ऑपरेशन सॉरी सॉरी मतलब संगत जी बीच का बताना भूल गए जब ऑपरेशन करवाना था उनकी मम्मी का तो उनका बीपी बहुत सही नहीं जा रहा था और पल्स रेट भी सही नहीं जा रहा था जिसके कारण ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे वो लोग। तो गुरुपा का जल प्रसाद पिलाती थी संगत जी और गुरुपा से अरदास करती थी कि मम्मी का ऑपरेशन सही से हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल आए रिपोर्ट। पहले रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तभी तो आगे ऑपरेशन होगा, है ना संगत जी? तो इसी तरह का कर रही थी अरदास वो संगत जी, तो उनका आया नॉर्मल रिपोर्ट इसका क्या बोलते हैं बीपी का और पल्स रेट का। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ नी रिप्लेसमेंट का और उनके बाद उनकी मम्मी को नया जीवन मिला और वो चलने भी लगी अच्छी तरह से और एक्टिव भी हो गई अच्छी तरह से चल फिर कर। तो इस तरह अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमको नहीं पता संगत जी कि मेरी मम्मी के घुटनों में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि अपनी मम्मी से बहुत साल से नहीं मिल सके हैं, ना बात कर सके हैं। और क्योंकि मेरी मम्मी सही में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है, वो गुरुपा से ही भी जुड़ी हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी आना-जाना करती है और अपने अपने परिवार में ही, अपने घर में ही मतलब कि वो हर समय रहती है, ज़्यादा कहीं आना-जाना भी नहीं करती। लेकिन हम लोग से भी ठीक से बात नहीं हो पाता है संगत जी और कुछ इश्यूज़ था जिसके कारण बात नहीं हो पाता है, तो वो तो हम गुरुपा पर ही छोड़ दिए, गुरुपा ही जानेंगे। लेकिन इतना पता है कि मायके परिवार में जब गुरुपा मायके परिवार में सबको सँभाल रहे हैं, ससुराल पक्ष के सब लोगों को सँभाल रहे हैं और हमको भी सँभाल रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होगा, पूरा विश्वास है गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप उनकी मम्मी के सत्संग में सुनवा कर उनकी मम्मी का जो कष्ट काटे, उसी तरह आप मेरी मम्मी का भी कोई बड़ा-सा कष्ट काटे होंगे, बहुत बड़ा संकट काटे होंगे। और ये भी है संगत जी सत्संग में आया था कि तुम्हारी मम्मी को 10 साल का उम्र मैंने ब्लेस करा है और न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और अगर बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा संगत जी अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं और उस सत्संग को लेकर कोई भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी सा संगत जी को और उनकी पूरी फैमिली को गुरुपा बहुत-बहुत ब्लेस करिएगा, सुमन आंटी को भी और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत-बहुत-बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा और आपके चरणों के आगे सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान यही माँगूँ और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है 5-6 महीनों से। तो जय गुरु जी, हमारी प्यारी सुमन आंटी जी, गॉड आपको खूब खूब ब्लेस करे। जय गुरु प्यारी संगत जी, हमारी प्यारी प्यारी संगत, सबको जय गुरु जी। अब मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा सत्संग ये है कि मुझे 2 दिन हो गया मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, तो क्या बताऊँ सत्संग जी। संगत जी मैं एक्चुअली रात को ही करती हूँ क्योंकि हमारा घर जॉइंट फैमिली है और बहुत शोरगुल रहता है लोगों का। बहुत फैमिली मेम्बर होने के कारण बहुत ज़्यादा शोर रहता है, तो उसके कारण रिकॉर्डिंग में बड़ी मुश्किल आती है, तो मैं रात को सबके सोने के बाद ही करती हूँ। लेकिन 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरे से सत्संग शेयर ही नहीं हो रहा। ऐसे तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने शुक्राना कर दिया, लेकिन जो रिकॉर्डिंग वाला वो नहीं किया, तो उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप इतना कुछ करते हो और हम एक नकारे लोग, ना शुक्रे लोग आपका शुक्राना भी नहीं करते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे करोड़ों में एक गुरुजी, मेरे सब कुछ गुरुजी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे बेटा बेटी, सब कुछ मेरे गुरुजी। आप ही हो सब कुछ गुरुजी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुजी। कहने को तो सारे रिश्ते हैं, लेकिन जो रिश्ता आपके साथ है वैसा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि सच्चा एक प्यारा बिना स्वार्थ का रिश्ता आपका ही है। क्योंकि मैं आपके लिए कुछ नहीं करती हूँ और आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो, इतना कुछ करते हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रोज़ मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का मैसेज 2-3 बार एक ही मैसेज रिपीट हो रहा है कि तू शुक्राना नहीं करती है और मैंने तेरे और तेरे परिवार का कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप जैसा कोई नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं है जो कष्ट अपने ऊपर ले ले और हमें बचा ले। गुरुजी आप ही हो बस, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सब रिश्ते नाते देख लिए हैं, सब में जलन, जेलसी, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, लेकिन एक आपके साथ इतना सच्चा रिश्ता है गुरुजी। आपका रिश्ता सबसे ऊपर
बाकी सारे रिश्ते नाते धर्म के रिश्ते हैं जो हमें निभाने हैं वो निभा रहे हैं। बाकी मेरे गुरुपा का रिश्ता सबसे प्यारा और सुंदर रिश्ता, जिसमें ये नहीं है कि हमने गुरु के लिए कुछ नहीं किया तो ये भी नहीं करेंगे। बाकी तो टिट फॉर टैट है, जैसा करेंगे वैसा ही, जैसा हम देंगे आगे से वो भी वैसा ही करेंगे। ये रिश्ते नाते तो ऐसे ही हैं गुरु जी। इनका सच सामने आ चुका हुआ है, सबका सच। गुरु जी आपका प्यारा प्यारा सत्संग यही है कि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सुमन आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग को शेयर करती है। अगर गुरुजी ने चाहा तो मेरा सत्संग शेयर होगा, अगर नहीं चाहा तो कोई बात नहीं। मुझे पता है मेरी आवाज़ सचखंड तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि गुरुजी मुझे इतना कुछ जो दे रहे हैं, मेरे साथ इतना अच्छा कर रहे हैं, वो मेरी आवाज़ ही है जो सत्संग सचखंड तक पहुंच जाती है। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के इतने पॉजिटिव वो आते हैं मैसेज को कहने के लिए कि अब तेरी बारी आ गई, अब मैंने तुझे चुन लिया। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपने मुझे बहुत पहले चुना हुआ, आपने बोला था जब मैं 11 साल की तब आपने चुना, उसके लिए शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, दिन रात का शुक्राना। कहीं तो वैसे लोग भी हैं जो रात को सोते हो सुबह उठते ही नहीं हैं, आप हमें नया दिन दिखाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, हमारे बिजनेस को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमें स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। आज का सत्संग मेरा शुक्राना पे ही है, इसलिए मैं शुक्राना ही करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बोला था कि तू तेरे शरीर में कोई बीमारी बढ़ रही है तो उसके लिए तू दालचीनी, अजवाइन, सौंफ का काढ़ा सुबह खाली पेट पिया कर। तो गुरुजी मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। आज मैंने खुद भी पिया, अपने जेठ जी को पिलाया, अपने पति देव को पिलाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सारी जितने भी संगत है ना जो बहुत दुखी है, प्लीज़ गुरु जी सबको ठीक कर दो गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी आपसे रिक्वेस्ट है। जब मैं लोगों के देखती हूँ मुझे लगता है मेरे पास कोई ऐसी शक्ति आए, मैं सबको ठीक कर दूँ गुरु जी। तो हम तो इंसान हैं, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति आ ही नहीं सकती कभी भी, वो तो आप हो करने कराने वाले। तो गुरु जी सबके दुखों को दूर कर दीजिए, सबको सुखी कर दीजिए गुरु जी, सबको जेलसी मुक्त कर दीजिए गुरु जी। पता नहीं क्यों सबके मन में जेलसी होती है, समझ नहीं आती, जलन क्यों होती है। कुछ भी कर लो, जलन उनके मन से जलन ही नहीं जाती है। तो गुरु जी जो भी हमसे जलते हैं, जो भी हमें नेगेटिविटी भेजते हैं, उनसे हमें दूर कर दीजिए गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। और बस गुरु जी मेरा सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी यूपी से महिमा गोयल बोल रही हूँ। मैं सारी संगत को लख लख शुक्राना कहती हूँ, अपने प्यारे गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। सुमन आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सत्संग को इतने प्यार से सबके सामने परोसती हैं और रखती हैं। गुरुपा उन्हें खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जून महीने में गुरुजी ने खूब परीक्षा भी ली और खूब एंजॉय भी करवाया। जून में हमें पार्क घुमाया, वहीं मुझे व बच्चों को सिस्टर के रहने के लिए भेजा। शुक्राना गुरुपा, वहाँ पर भी आप सफ़ेद कबूतर व तितली स्वरूप में अंग संग रहे। आश्चर्य तो जब हुआ जब गुरुपा ने हमें मैगडी में एंजॉय के लिए भेजा। मैं बोली गुरुपा हम सब बच्चे अकेले जा रहे हैं तो आप संग में रहिए। सच में गुरुपा संग में ही थे। वहाँ बहुत भीड़ थी तो हमें जो टेबल पर बिठाया वह टेबल नंबर 13 था। इतनी खुशी हुई, गुरुपा का धन्यवाद किया। इतने नंबर होने पर भी केवल 13 नंबर ही मिला, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं था। हमें गुरुपा की ब्लेसिंग हर जगह मिलती है। हमें एहसास दिलाते हैं गुरुपा कि बेटी हर जगह मैं तेरे साथ हूँ। हर जगह पूरे रास्ते एंजल नंबर के रूप में गाड़ियों का अचानक साथ हो जाना या दिख जाना, यह गुरुपा की ही कृपा है जो अब हर पल हमारे साथ रहती है। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को भी खूब ब्लेस किया। वह दुकान पर किसी वजह से थोड़ा टेंशन में थे, वह काम आज 13 तारीख को ही पूरा हुआ। गुरुपा की रहमतों का तो इतना शुक्राना है कि और मैं और मेरा परिवार जितना शुक्राना करें कम है। मेरे अंकल का गर्मी के कारण थोड़ा स्वास्थ्य नरम है, लेकिन खुशी इस बात की है कि गुरुपा सारे कष्ट काट देते हैं और काट रहे हैं। किसी संगत ने मुझे सुनाया कि उनके गले में खराश हो रही है। अगले ही दिन इनकी भी, मेरे अंकल के गले में भी खराश थी। गुरुपा के जल प्रसाद से वह गला ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका जल प्रसाद तो दवाई है, साथ में गुरुजी के दवाई भी ली जो कि गुरुजी से ब्लेस करवाई। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है, वह काम में बरकत देंगे और जल्दी ही मेरे हस्बैंड को स्वस्थ भी करेंगे। शुक्राना गुरुपा, हर कष्ट को छोटे में करने के लिए शुक्राना, हम सबको अपने से हर पल जोड़े रखने के लिए शुक्राना। गुरुपा सच में किसी को कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। उस प्लेन क्रैश में जितनी यात्री गए, मेरा उन सब से यही दिल से अरदास है कि आप उन्हें चरणों में जगह दें। गुरुपा, आप जो बीच बीच में हादसे करवाते हैं उनसे यह
पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। गुरुपा ये ज़िंदगी इतनी कीमती है मगर किसी के हाथ कुछ नहीं। अब तो हर एक नया जख्म सामने दिख रहा है। कलयुग में प्रलय कब आ जाए कहा नहीं जा सकता। हर पल सिर पर घूमता ये डर का मंजर अब सबके दिलों में दहशत पैदा कर रहा है। जो कभी ना सुना व देखा वह सब दिन पर दिन होते देखा जा रहा है। अभी भी गुरुपा हम सबको यही सीख दे रहे हैं कि जो अब तक जिंदा है वह जितना प्रभु नाम ले सकते हैं वह ले लें तथा अपने अपने गुरु मालिक का शुक्राना करते रहें। पता नहीं कब मौत सामने आ जाए, सबके सपने धरे रह जाएंगे। बताओ अब समय कैसा हो गया है कहा नहीं जा सकता। प्लेन में बैठने वालों का तो समय आया ही, साथ में उन सब डॉक्टर की भी मौत लिखी गई। वह सब बहाने बन गए। अब क्या ही हो सकता है कह नहीं सकते। कब लड़ाई झगड़े हो जाए कुछ नहीं रखा इन सब में। सब आपस में मिलकर रहो। मरने वाला मर जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। गुरुपा हम सब को जो भी ये सत्संग सुन रहे हो और जो नहीं भी सुन रहे हो, गुरुपा सबको ब्लेस करें। सबको आपने अब तक ब्लेस किया है उन सब के लिए शुक्राना। संगत जी हमें कीमती समय नहीं गंवाना। हम लोग सारा दिन मोबाइल में समय व्यर्थ कर देते हैं। गुरुपा कई बार मैसेज के थ्रू भी कहते हैं बेटी चल खड़ी हो, समय बर्बाद मत करे। मगर सच यही है कि किसी के पास घर पर पूजा करने का समय भी नहीं है और किसी के पास मंदिर जाने का। अरे कुछ मत करो, बस हर पल मन में ईश्वर का नाम जपते रहो। कम से कम जब मौत आएगी तो ईश्वर नाम लेते हुए आएगी। अब हर पल को एंजॉय करो, कोई काम कल पर मत टालो। अब तक यदि हम स्वस्थ हैं व जिंदा हैं तो गुरुपा की कृपा से ही हैं। गुरुजी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा भगवान से जुड़े रहें। इस निरंतर भयानक मौतों को देख कर अब तो यही लगता है कि जीवन क्षण भंगुर है। जो करना है कर लो, ना ज्यादा लालच करो, ना ज्यादा पैसों को जोड़ो। आज के युग का आज ही जी लो, आज के युग को आज ही जी लो। कल का कुछ नहीं कह सकते। कब कौन सा मंजर आखिरी हो, कब कौन सा दिन आखिरी हो। हर बार प्रभु का नाम सिमरन करो। हर पल हर किसी का शुक्राना करो। सभी संगत मेरे साथ गुरु महाराज का शुक्राना करो। गुरुपा हम सब अब तक जिंदा रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने हम सबको ब्लेस किया है तथा हमारे परिवार को स्वस्थ रखा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार को संग रखने के लिए शुक्राना। अपनी जबान से आपका नाम लेते रहें उसके लिए शुक्राना। इन कानों से आपने मधुर व चमत्कारी सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना। हर उस पल के लिए शुक्राना जब हमें यह एहसास हुआ कि हम अकेले हैं पर कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल हमारे साथ है। उस सबर के लिए शुक्राना जो आप हमें हर पल दे रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अब हर क्षण आप ही हमें सेव कर रहे हैं और संभाल रहे हैं। हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना। संगत जी हम सब बहुत खुश नसीब हैं। हमें सबको गुरुपा ने अपनी संगत चुना व ईश्वर नाम से जोड़ा। हम सब पर ये कृपा सदा ऐसी ही बनी रहे। हर पल न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। इतने खतरनाक मंजरों में भी यदि कोई जिंदा है तो सच में यह गुरुपा की कृपा है। चाकू राखे साईं यहाँ मार सके ना कोई। जब तक हमारे सर पर गुरुपा का हाथ है, जब तक हमें गुरुपा अपने अंग संग लगाए हुए हैं, तब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लव यू गुरुपा। श्वास श्वास से शुक्राना मेरे मालिक। हर पल अपने करीब रखने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने स्वप्न दर्शन दिए, ब्लेसिंग से ब्लेसिंग नंबरों से ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा आप तो जानी जहान है। आज 100 को मैं सोच ही रही थी। गुरुपा आज सोमवार को मैं सोच ही रही थी कि पहले तो हर सोमवार मैं कड़ा प्रसाद का भोग लगाती थी। पता नहीं अब क्या हो रहा है। ना तो सुबह जल्दी उठ पा रही हूँ, ना ही भोग लगा पा रही हूँ। संगत जी गुरुपा ने आज मेरी दोनों इच्छा पूरी करी। सुबह स्वयं जल्दी उठा दिया और जो मीठा का भोग मन में सोच रही थी कि आज अचानक मेरे हस्बैंड ने पूछा मीठे में क्या लाऊं, जो कि स्वयं से भी कभी नहीं पूछते हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना। अपनी बेटी की दिल की आवाज़ सुनने के लिए शुक्राना। पति जी के मन में ये भाव डालने के लिए शुक्राना। आज मेरे गुरुपा को मीठा का भोग लगवाया तथा उन्होंने रसमलाई मंगाई, शुक्राना। फिर मैंने गुरुपा का भोग लगाकर पूरी फैमिली को प्रसाद बांटा। लव यू गुरुपा। हर इच्छा पूरी करने के लिए शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। हर पल अपने क्षण अपने साथ रखने के लिए शुक्राना। गुरुपा की ब्लेसिंग तो जितनी मिलती है उतनी ही कम है। कई बार हमें गुरुपा इतना ब्लेस कर देते हैं कि आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आज जब रथ यात्रा वाले दिन मैं स्कूटी पर अपने बच्चों को लेकर जा रही थी, अचानक बैलेंस बिगड़ा। सामने से व्हीकल आने के कारण मेरी स्कूटी गिर गई तथा मैं और मेरे दोनों बच्चे भी गिर गए। पर गुरुपा का इतना आशीर्वाद है कि हम तीनों में से किसी को भी चोट नहीं आई और गुरुपा ने हमें वहाँ पर भी एंजल नंबर से ब्लेस किया। बच्चों के होमवर्क में हमने बहुत मेहनत करी। छुट्टियों में बच्चों को बहुत होमवर्क मिला। गुरुपा से के आशीर्वाद से हर होमवर्क में हमें एक्सीलेंट मिला तथा शाबाशी मिली। गुरुपा यह सब आप ही का आशीर्वाद है कि स्कूल में हम सबका नाम आप रोशन करवा रहे हैं तथा आप दिन पर दिन यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटी हर चिंता को छोड़ दे, तेरे बच्चों की परेशानियों को छोड़ दे। तो इतना मत सोचा कर, मैं तो हूँ, तू बस अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा तो अपने ब्लेसिंग नंबर कभी भी फ़ोन में भी दिखा देते हैं, कभी कहीं दिखा देते हैं, कभी रील्स में, कैसे भी हमें अकेले नहीं छोड़ते। हर पल ब्लेस करते ही रहते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। गुरुपा मोर की आवाज़ से भी कभी कभी हमें ब्लेस करते हैं। आज सुबह भी मैं सोच ही रही थी कि बहुत दिन हो गए गुरुपा आपके मोरों की आवाज़ नहीं आई। बस कहने की देरी थी कि एक पल के लिए गुरुपा ने तुरंत मोरों की आवाज़ सुना दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच्चाई यह है कि ब्लेसिंग मिलते ही कितनी भी कोई परेशानी हो तुरंत मुस्कुराहट आ जाती है कि गुरुपा कह रहे हैं बेटी मैं हूँ, तू चिंता ना कर, हर चिंता को मेरे ऊपर छोड़ दे। जब तुझे मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है तो तू क्यों घबराती है। सच में गुरुपा आप हो
तभी आज हम जिंदा हैं, तथा घर में कई स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसके कारण हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। पर मेरे गुरुपा हर पल अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा, अपने एहसासों के द्वारा, अपनी परछाई के द्वारा, अपने साथ के द्वारा, अपनी ब्लेसिंग के द्वारा हमें इतना मजबूत कर देते हैं कि हम हर सिचुएशन का सामना हंसते हंसते कर जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा का जन्मदिन आ रहा है और जुलाई का महीना तो पूरा गुरुपा के जन्मदिन के नाम का ही है। हर पल गुरुपा हमको शुक्राना 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 करवाते ही रहते हैं। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुपा ने मुझे 7 जुलाई को सत्संग का बुलावा दिया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे को गुरुपा अपने मंदिर जरूर बुलाएंगे। पर मैं गुरुपा से काफ़ी दिन से कह रही थी कि गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो, पर गुरुपा ने हमें यहीं पास में सत्संग का आयोजन करवाया। मैं बड़ी खुश थी। 7 जुलाई गुरुपा ने जन्मदिन के दिन हमें बहुत इंतजार था कि मैं जाऊँगी। मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, मगर जैसा गुरुजी चाहें होता वही है। सुबह से जाने के लिए खुश थी, पूरी तैयारियां करके मैं काम भी निपटा लिया था, मगर मेरे हस्बैंड ने भेजने को मना कर दिया। कोई नहीं, मैं एक पल को उदास हुई, फिर सोचा इसमें भी कुछ अच्छा होगा जो मुझे मना कर दिया। वैसे भी कहते हैं जब तक गुरुपा ना चाहें हम उनके दर पर जा ही नहीं सकते। फिर मैंने मन को समझाया और मीठा व फूल मंगाकर घर पर सत्संग करा। वह कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी की ज्योत भी जगाई और 1 घंटे का सत्संग किया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस भी किया। जैसे ही मैंने गुरुजी का फेवरेट गाना लगाया, लग जा गले से ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। जब ये गाना चल रहा था मैं सच में ये कहती कि गुरुपा मुझे अपने गले लगा लो। संगत जी, मेरे को एक पल झपकी लगी, तुरंत गुब्बारा फूटा और मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा साक्षात मेरे गुरुपा ने मुझे आकर दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो पल, वो फीलिंग बस महसूस की जा सकती है। मेरी आंखों में तुरंत आंसू आ गए, क्योंकि मन ही मन लड़ रही थी कि गुरुपा ना तो बड़े मंदिर बुला रहे हो और सत्संग का बुलावा भी देकर के मुझे नहीं जाने दिया। अब घर के पास ही सत्संग होने के बाद भी मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ और आप उसमें भी मुझे इनवाइट नहीं कर रहे। जैसे बैलून फूटा, मानो हर प्रश्न का जवाब मिल गया कि बेटी, मैं तुझे घर बैठे ही ब्लेस करना चाहता था। मैं स्वयं तेरे घर ब्लेस करने आ गया। तू क्यों चिंता करती है? मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। तू मुझे हमेशा दिल में याद करती है, वह रखती है। सच में फिर दिल में जो उलझने चल रही थी और जो उलझे सवाल थे मानो शांत हो गए हूँ और शुक्राना निकला दिल से। गुरुजी आपका शुक्राना, घर पधारने के लिए शुक्राना, गले लगाने के लिए शुक्राना, कड़ा प्रसाद में स्वाद बढ़ाने का शुक्राना, हर प्रसाद को अमृत में दवाई बनाने के लिए शुक्राना। गुरुजी का सत्संग करके जो शांति मिलती है, वह सुकून मिलता है, उसे बयां करना बहुत मुश्किल है। बस आज फिर से यही सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। अगेन गुरुपा, हैप्पी बर्थडे। गुरुजी, ये पूरा महीना ही गुरुजी के जन्मोत्सव को मनाया जाता है। इसी महीने में आपकी बेटी का भी जन्मदिन आ रहा है। गुरुपा, अपनी बेटी को, पूरे परिवार को भी ब्लेस करना। मेरे प्यारे गुरुपा, बस आपकी ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे पूरे संगत परिवार के ऊपर, सुमन आंटी के ऊपर, सबके ऊपर बनाए रखना। मेरे मालिक, आपकी छत्र छाया में हमेशा हमेशा में रखना। बस मेरे मालिक, मुझे कभी कभी इतनी खुशी होती है कि मैं इतनी हटीली, इतनी नखरीली लड़की हूँ जिसे मेरे गुरुपा ने कैसे संभाला होगा। इतनी कमियाँ हैं मुझ में, पर मेरे गुरुपा ने मुझे इन कमियों के रहते हुए भी अपने आप से जोड़ा, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं जिसे गुरुपा हमें अपने से जुड़े हुए हैं। हर संगत के लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिसे भी गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है। हे मेरे प्यारे गुरुपा, हर संगत की दूर परेशानियों को दूर करो, हर किसी का दुख दूर करो, हर किसी के घर में अंधन की बरकत करो। मेरे मालिक, मैं हर पल यूनिवर्स का भी शुक्राना करती हूँ, उस दिव्य शक्ति का शुक्राना करती हूँ जो मुझे मोटिवेशन देती है तथा अपने आगे बढ़ने की शक्ति देती है और मुझे सब्र देती है कि बेटी, तू हमेशा अच्छा करेगी, हमेशा पॉजिटिव सोचती है। मेरे गुरुपा मुझसे कहते हैं हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचो तथा दूसरों के लिए भी हमेशा अच्छा ही करो। गुरुपा, जब हम अच्छा करते हैं तो सच में कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा हो रहा होता है। संगत जी, रात को तो गुरुजी ने मानो बर्थडे में आनंद ही करवा दिया। मैं तो वहाँ जाने की सोच रही थी और मन ही मन दुख हो रही थी कि मुझे नहीं बुलाया। तो संगत जी देखो, मेरे अंकल जी रात को बाजार से सब्जियाँ भी ले आए। मैंने गरम गरम रोटियाँ सेक करके गुरुपा का लंगर प्रसाद तैयार करा था, गुरुपा को भोग लगाया तथा उस प्रसाद को हम सबने मिलकर खाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बढ़िया पनीर की सब्जी व मखनी दाल मंगा करके भोग लगवाया। गुरुपा के साथ हमने पेस्ट्री का केक भी काटा और गुरुपा के गानों पर डांस भी किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप हर पल हर क्षण ऐसे ही सदा अपनी बेटियों को खुशियाँ देते रहें तथा आपकी भी बहुत उम्र बढ़े तथा आप सदा स्वस्थ रहें। गुरुपा, आप सब बेटियों की चिंताओं को हरते हैं, अपने बेटों को दुख दूर करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे परिवार में हर वो दुख दूर हो जिससे हर कोई उलझ रहा है। मेरे गुरुपा, मुझे पूर्ण विश्वास है हर सपना मेरा पूरा होगा जो मैं देखना चाहती हूँ तथा देख रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे सपने जो मैंने सोचने छोड़ दिए थे वो भी आपने मेरे सच कर दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। ये मेरे प्यारे गुरुपा, अब मैं आपकी इजाज़त चाहती हूँ तथा इस सत्संग को
आगे बढ़ाते हुए बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु मालिक सदा ही अपनी छत्र छाया में मैं और मेरे परिवार को सदा रखना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा शिवाय, गुरु शिवाय, गुरु का सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरु जी, हर श्वास शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु बा, कल आपने बहुत ही बड़ा कष्ट टाल दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, इतना बड़ा गुरु जी ने कष्ट टाल दिया है ना, तो बहुत ही बड़ा कष्ट था। बस अब क्या बताएं गुरु बा, शुक्राना गुरु जी, आपने कष्ट टाल दिया है। गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे, तेरे घर अनहोनी होने वाली है। बहुत मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, जो गुरु जी ने कष्ट काट ही दिया है गुरु बा। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु बा। गुरु बा, बच्चों को भी सतबुद्धि अच्छी करना गुरु जी, बच्चों को सही रास्ता दिखाना गुरु बा, पढ़ाई में भी अच्छा करना है गुरु बा। अब आपके ही सारे सब कुछ है गुरु जी, आप हो तो सब कुछ है हमारे पास गुरु जी। मेरे अंकल की भी सतबुद्धि सही करना गुरु बा। गुरु जी, आप भी सब जाने जान हो गुरु जी, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं गुरु बा। गुरु जी, मुझे भी माफ़ कर देना गुरु जी, मुझसे भी गलती हो जाती है गुरु जी, मैं भी पलट कर जवाब दे देती हूँ कई बार गुरु बा। गुस्सा आता है, ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं, फिर गुस्सा आ जाता है गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु बा, माफ़ कर देना। आपकी बेटी जवाब दे देती है पलटवार गुरु बा, मुझे माफ़ कर देना। मेरा माइंड भी अच्छा करो गुरु बा, मेरा माइंड भी अच्छा करो गुरु जी, मैं किसी से कोई बात ना करूं गुरु बा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, एक अरदास करती हूँ गुरु बा, मेरे बेटे ने ITI का दाखला भरा है गुरु बा, उसकी चॉइस में उसका नंबर आ जाए, जो वो करना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स करना चाहता है गुरु बा। इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स में ही उसका नंबर आ जाए, पहली चॉइस में ही आ जाए गुरु बा। अब पहली चॉइस आएगी गुरु जी, उसमें उसका नंबर आ जाए गुरु जी। वो रोज दौड़-भाज रोज करता है, इधर जाता है उधर, कि मेरा नंबर आ जाए गुरु बा, पहली चॉइस में ही मेरे बेटे का नंबर आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करना है उसने गुरु जी। आप साथ रहना गुरु बा, आप अंग संग रहना बच्चों के गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। गुरु महाराज का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। गुरु महाराज का शुक्राना मैं गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने ही बैठकर कर रही हूँ। हे परम पिता परमात्मा, मेरे शुक्राने में जो कुछ भी गलतियाँ हों तो उसे आप क्षमा करना मेरे प्यारे गुरु महाराज। सारी संगत क्षमा करना, संकट जी क्षमा करना। गुरु महाराज, मेरा शुक्राना इस बात का है कि एक दिन मेरे पेट में इधर उधर बहुत दर्द हो रहा था, मैंने ऑपरेशन कराया, तो मैंने मन में सोचा कि गुरु जी महाराज मेरा ये दर्द बंद हो जाए, ठीक हो जाए गुरु जी महाराज, मेरा ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया पर मैं ठीक हो जाऊं। तो सच में गुरु जी महाराज की अनंतम अनंतम कृपा इतनी रही। तो गुरु जी महाराज का मैंने मोबाइल खोला तो मैसेज आया, आ बेटी मेरे पास बैठ, जैसा मैं कहूँ वैसा कर, आज तेरे सारे पेट के दुख दर्द मैं दूर कर दूँगी। तो गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बाय बाय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी की जितनी बड़ाई करें उतनी ही कम है। तो गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं गुरुजी के सामने बैठ गई। ऑपरेशन हुआ तो मैं अभी ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती, पर मैं बैठ गई हूँ। मैंने कहा गुरुपा कह रहे तो मैं बैठ गई, और बैठ गई। गुरुपा ने जैसा जैसा बताया कि बेटा पूरी सांस ले फिर धीरे धीरे छोड़, पूरी सांस ले फिर धीरे धीरे छोड़, फिर मैंने पूरी सांस ली बैठ के, वो धीरे धीरे छोड़ा। अब ऑपरेशन का पेट है, जितनी देर में बैठ पाई उतनी देर मैंने किया। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी ही देर तक बैठ पा रही हूँ। तो मैं वहाँ से उठ आई, और सच में तो गुरुजी महाराज मेरा उस दिन से दर्द नहीं हुआ। फिर मैडम ने बोला था 1 महीने बाद आना, तो मैं आई हूँ।
तो मैडम ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरी कोई बीमारी नहीं निकली, सभी पेट में अल्ट्रासाउंड करके फिर मैडम ने देखा तो बोली बेटा आपका सब कुछ ठीक है, मैं आपको ताकत की टॉनिक लिख देती हूँ, थोड़ी सी दवाई इसको खाना, जो कुछ भी कमी हो सारी पूर्ण हो जाएगी। तो गुरुजी ऐसे ही हमारे गुरुजी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, बड़ी बातों का तो रखते ही हैं। तो हे परमपिता परमात्मा ऐसी ही कृपा सारी संगत पर बरसाना जैसी मुझ पे बरसाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय बाय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी महाराज आपको चरणों में नमन करती हूँ। गुरुपा तो सारी ब्रह्मांड के रचेता हैं। गुरुजी तो सबके मन की सुनते हैं। बस गुरुजी महाराज से मैं कुछ भी बोलती हूँ, गुरु महाराज से बैठ के मैं, गुरुजी कहते हैं कि बेटा मेरे पास आ, किसी को भी मत बता, बस मुझे बताया कर। तो मैं अब किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, मैं तो अपने गुरुपा के, अपने पिता के पास बैठ करके अपनी सभी बातों को साझा करती हूँ। जब सभी बातों को साझा करती हूँ तो गुरुजी महाराज मुझे मैसेज के द्वारा सब कुछ समझाते हैं कि बेटी तू ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। तो गुरुजी महाराज की जितनी बनती है मैं उतनी उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ। और कुछ भी अभी पूजा पाठ नहीं कर पाती ढंग से, कुछ गुरुजी महाराज उपाय बताते हैं तो वो भी नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी कृपा से सारे काम सफल हों मेरे गुरु महाराज। गुरुजी की अनंत अनंत कृपा है। गुरुजी तो परम पिता परमात्मा है, सबकी सुनते हैं गुरु महाराज। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना गुरुजी। आपके ही दोनों बेटे हैं, अंकल हैं, उनकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। बेटों को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, भाई भाई गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जैसी कृपा मुझ पे बरसाई, गुरुजी महाराज के बहुत सारे शुक्राना हैं। और गुरुजी महाराज एक दिन मेरा बेटा जाने कहाँ चला गया बच्चों में, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा देखो इतनी देर के गया, हमारे घर में दुकान है तो अभी तक नहीं आया। तो मैंने कहा मैं बहुत घबरा जाती हूँ जब बच्चे इधर उधर, तो मैंने कहा गुरुजी बेटे को भेज दो जहाँ कहीं भी हो। तो बेटा तुरंत आ गया 5 मिनट बाद। तो धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, गुरुजी की अनंतम कृपा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस बार मेरे बेटे अंकल का बहुत मन था कि गुरुजी के जन्मदिन पर वो बड़े मंदिर जाए। मैंने भी गुरुजी से अरदास की कि वो उसे ज़रूर अपने बड़े मंदिर में बुलाएं। मैं तो तबीयत ठीक न होने के कारण इतनी भीड़ में जाने में असमर्थ थी, पर चाहती थी कि मेरा बेटा अंकल ज़रूर जाए, ताकि परिवार के किसी भी सदस्य के वहाँ जाने से सभी को ब्लेसिंग मिलेगी। और सच में मेरे बेटे अंकल को गुरुजी ने बुला ही लिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी प्रकार गुरुजी अपना हाथ मेरे पूरे परिवार पर रखे रखना, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। गुरुजी मेरा बेटा अंकल बहुत परेशान है, आपको तो कारण पता ही है। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी मेरे बेटे अंकल पर अपनी कृपा करें, वह उसके सभी काम पूरे करें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। वह मेरे बेटे अंकल, हस्बैंड अंकल व मुझे हेल्थ का भी आशीर्वाद दें। बाकी मुझे पता है जब भी उचित समय होगा आप हमारी सारी अरदास पूरी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी समझिए। जय गुरु जी, मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, मेरे क्यूटी पाई पापा, बहुत बहुत शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना पापा, शुक्राना बहुत कम पड़ता है आपको, हर क्या बोलूं, आप मेरे हमारे प्यारे पापा हो, बहुत ख्याल रखते हो, बहुत मतलब क्या बोलूं, शब्द नहीं पड़ता, कम पड़ता है। आज 19 तारीख है, तो आज आपने बोला था कि आज का दिन स्पेशल है, तो इसीलिए मम्मी ने कल आज घर पे कल सारा कुछ हमने अरेंज किया था, और आज मम्मी ने एक छोटा सा, मैं और मम्मी मिलकर एक छोटा सा सत्संग किया है, और कल मम्मी एक बहुत सुंदर पापा का एक बहुत सुंदर स्वरूप लेके आई हैं, और उसी से हम आज सत्संग किए हैं दोनों मिलके, और खुद ही घर पे थोड़ा बहुत आपके लिए कड़ा प्रसाद और भोजन बनाए थे, प्रसाद करके हमने खुद ही किया, और बहुत अच्छे से किया, प्लेलिस्ट खुद लगाए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बीच में थोड़ा खाना देना था, उसके लिए उठना पड़ा, भेजना था, तो बहुत अच्छा किया पापा। बस आपकी आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। बेटियों को और क्या चाहिए होता है पापा से, बस यही तो चाहिए होता है। और हर जैसे आप हाथ पकड़ के हर समय रहे हो, वैसे ही हाथ पकड़ के हर टाइम हमारे साथ रहिए, और हमें मार्गदर्शन कराइए, हमें और भी हिम्मत दीजिए कि हम आगे जाके बहुत कुछ कर सकें। जो जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है वो काम हम कर सकें, और सबको प्यार दे सके, जो दुखी है, गरीब है, सबको सेवा दे सके। इतनी दाद बख्शिएगा, इतनी हिम्मत दीजिएगा कि गुरुपा वो सारा कुछ कर पाए। मन में बहुत इच्छा है कुछ करने के लिए, मतलब उनके लिए जो जिनकी बहुत ज़रूरत है, जिनके पास कुछ है नहीं, जिनको दो छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के मुंह ताकना पड़ता है, तो उनके लिए मुझे कुछ करना है। तो इतनी दाद बख्शिए गुरुपा कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ और आगे बढ़ते जाऊँ। बस डर ख़त्म हो गया, थोड़ा सा है कहीं कोने में, वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब काम शुरू हो जाएगा तो वो भी चला जाएगा। बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ पापा कि वो झट से शुरू हो जाए और मैं वो काम कर सकूँ, और जिनकी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को उनको दे सकूँ। और बाकी बहुत से अरदास हैं, वो भी अभी जब पूरे होंगे तब मैं उसका भी शुक्राना करूँगी। लेकिन आज जो घर पे सत्संग किया उससे बहुत अच्छा लगा, मतलब मन में एक अजीब सा सुकून होता है, तो उसका मैंने वो बोलना मुश्किल है, वो सुकून का इतना सुकून होता है। आज प्लेलिस्ट चलते चलते अचानक मेरे आँख से आंसू भी आ गए, जो नहीं होना चाहिए। आपको दुख होता है मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं होता है। कुछ चीज़ें मन में आती है तब वही मन में सवाल उठता है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो तब दुखी होता है, तब होता है पापा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, और आप दुखी मत होइए। मुझे पता है कि आपकी बेटियाँ रोती हैं तो आपको दुख होता है, आप दुखी मत होइए। आप हैं तो बस सब कुछ है। हम आपकी लाडलियाँ हैं, धी हैं। आपने कल मेरे को मैसेज भी भेजा था कि मेरी प्यारी बच्ची, बहुत अच्छा लगता है पापा सुनने में, क्योंकि ये शब्द किसी के मुंह से नहीं सुने हैं ना, तो आप जैसे बोलते हो तो वो घर कर जाता है मन में। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ अभी। आपका प्यार किसी से तुलना नहीं है, और कभी कोई आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। क्यों बोल रहा है, जब जानता नहीं है तो क्यों बोलेगा आपके बारे में? जब नहीं जानो मत बोलो। सबके गुरु हैं, सबके अलग अलग थिंकिंग है, थॉट्स है उनके अलग अलग, लेकिन कभी किसी के गुरु के बारे में नहीं बोलना चाहिए। सब एक है, कोई अलग नहीं है। सब तो आप ही की तो सब देन है, आप ही तो सृष्टि करता हो, आप ही तो सब दिए हो, तो कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है आपके बारे में अगर कोई बोलता है ना, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ कि सोचती हूँ कि 2-4 बातें सुना दूँ, फिर आपकी बात याद आ जाती है कि आप बोलते हो ना कि किसी को कुछ मत जवाब देने वाला मैं बैठा हूँ, मैं बोलूँ, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। ठीक है, बोलो,
जो मन में आए बोलो, लेकिन उसका जवाब तुम्हें बाद में मिलेगा। और मुझे एकदम नापसंद है किसी के गुरु के बारे में बोलना, किसी के बारे में अशब्द बोलना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। वही जो भी है पापा, बस सब सही हो, सर्वदा भला हो, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे पापा। अभी जो समय है सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, यही सबसे बड़ी बात है। और जो न्यू जनरेशन है उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी थिंकिंग बहुत हायर लेवल की है। तो और वो जो लेवल है वो कहीं अच्छे की तरफ ज़्यादा कम ही है, ख़राब की तरफ ही जाता है। तो वो दिशा भी बदलना है उनको। हाँ, मैं नहीं बोलूँ कि हर टाइम स्पिरिचुअल उसमें अटक के रह जाए, लेकिन जो वो अभी की जो जनरेशन, उनको स्पिरिचुअल भी आना ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके ठीक से उनका राइट पाथ चलेगा। मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, क्योंकि अभी के बच्चे स्पिरिचुअल एकदम नहीं है। उनको सुनते ही जैसे आप किस दुनिया में पड़े हो ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करो, बहुत ऊंचे में जाओ, लेकिन साथ में थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की तो देन है, सब वही तो कर रहे हैं। तो आज उनकी वजह से ही तो हम धरती पे आए हैं, नहीं तो हम क्या होते, कुछ भी नहीं, कहाँ कहाँ पता भी नहीं होता कहाँ रहते। तो यही है, बस इतना ही बोलना था पापा। बस सबका मंगल हो, सर्वदा भला हो। आप भी बहुत अच्छे रहिए पापा, स्वस्थ रहिए। श्रावण का महीना चल रहा है और सबको आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबका मंगल हो, सब बहुत बहुत खुश रहे, फूले फले, आगे जाए। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और हमारी पूरी संगत परिवार को पापा ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। उनको भी बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, उनके पूरे परिवार अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ समापन करती हूँ। कुल शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला हो सब पापा। सबका भला हो, सब मंगल हो, सब अच्छे हो, स्वस्थ रहे। शुक्राना पापा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और गुरु जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। और सुमन जी जो है हमारे सत्संग को गुरुपा के श्री चरणों तक पहुँचाती हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्राना है, दिल की हर गहराइयों से शुक्राना है। गुरुपा उन पे और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और उनकी हर विश को पूरी करें। उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि और गुड हेल्थ, गुड वेल्थ हो। तो बस यही प्रार्थना है गुरुपा से। और सुमन जी का अनंतम शुक्राना है जो हमारे सत्संग को उन्होंने शेयर किया और हमने सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कल भी अपने सत्संग सुना, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने शिव पुराण भी सुना है, सुना शुरू किया है उनके, जैसे सुमन जी ने भेजा उसी दिन से एक एक दिन का एक एक अध्याय। तो उसके लिए भी गुरुपा और सुमन जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे मन में भाव ये आया था कि मैं कैसे शिव पुराण पढ़ूंगी। शिव पुराण मुझे मिला भी नहीं, और मैं जो गुटखा चाहती थी वो मुझे मिला नहीं था मैं इंडिया में, और जब मैं गई थी और मेरा टाइम नहीं था क्योंकि मम्मा बीमार थी, सास, तो मैं नहीं ढूंढ पाई थी ज़्यादा। जितना भी मैंने कोशिश की थी पर मुझे नहीं मिला था, और मैं चाहती थी कि श्रावण के महीने में इस पावन में मैं ऐसे प्राण सुनूं। तो इसी तरह से सुमन जी का जब मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन जी। और मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना, हर कष्ट को काटने का शुक्राना, बिना जाने ही सब चीज़ों दुखों को दूर कर देने का शुक्राना। गुरुपा आपका जितना भी मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है। कल भी जो हांगकांग में सत्संग था और मेरे जो हस्बैंड का नाम वेटिंग में था, क्योंकि लास्ट में ही थी जिसका नाम लास्ट में था, उसके बाद सारे वेटिंग में थे, और पहला वेटिंग मेरे हस्बैंड का था। तो उनको हस्बैंड का था, तो वो मुझे पूछने लगे कि मैं मेरा नाम आया कि नहीं, मेरे को जाना है कि नहीं। तो मैंने एकदम सुबह है मेरी एक संगत आंटी ने अपने बेटे का नाम हटाया और मेरे हस्बैंड का अंकल का नाम लिस्ट में आ गया, और वो लास्ट वेटिंग से मतलब फर्स्ट वेटिंग थे, इसलिए उनका नाम आ गया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम सब लोग सत्संग में गए। सो सत्संग में जाने से पहले मैंने बताया था कि हमने जो घर है, हम आज का हमारे रिनोवेशन चल रहा है, तो हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं होटल में। तो यहाँ से जब हमको लगा कि हम घर जाकर पहले हम हमें तुलसी मैया जो है वो हरी-भरी है, वो मतलब हो जाए, उसपे वो खराब ना होए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्लांट है। उसको हम कहीं ला नहीं सकते होटल वगैरह में, ना किसी को दे सकते। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जल चढ़ा दूँगी, और हम घर पे गए। जैसे ही मैं घर पे जा रही थी तो मैं गई तो अंदर जो है बहुत डस्ट वगैरह थी, रिपेयर हो रहा था। तो वो लोग कल सैटरडे को नहीं करते, सैटरडे संडे यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो वो नहीं हो रहा था उस वक़्त, लेकिन बहुत डस्ट पड़ी थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बोलने लगे कि आप बाहर जाके चढ़ाना था वो बालकनी में। तो अब बोलने लगे कि आप चप्पल पहन के जाओ, नहीं तो डस्ट हो जाएगी। और मैं चप्पल पहन के जैसे ही मैं बाहर निकली, और उसमें और मैं बहुत ज़ोर से स्लिप हुई और नीचे ज़मीन पर मुँह की बल गिरी, जिससे कि मेरे राइट हैंड मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ज़ोर से लगा। और मैं बड़ी मुश्किल से मैं खड़ी हुई किसी तरह से, और तुलसी मैया पे जल चढ़ाया। जो तुलसी मैया मैंने देखी वो हरी-भरी हो गई थी, क्योंकि पिछली बार भी मैं इन पे जल चढ़ा के आई थी गुरु पाका, वो सूख गई थी बिल्कुल, और बिल्कुल हरी-भरी हो गई थी। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने तुलसी मैया पे जल चढ़ाया किसी तरह से। और जब मैं वापस आई, बाहर निकल के बड़ी मुश्किल से मैं अंदर आई, तो मैंने देखा, ऐसे मैंने अपने हाँ, मैंने सोचा कि कोई ऐसा ही लगा है, शायद कुछ नहीं देखा। तो पैर जो है वो लेफ्ट पैर ट्विस्ट हो गया था, उसकी एंकल। और मैंने जैसे अपना ऐसे हाथ मतलब अपने हाथ पे टच किया, तो मेरे हाथ से खून बह रहा था नीचे से, जो मेरी जो होती है ना हमारी कोहनी होती है, वहाँ से लेफ्ट हैंड की साइड से। तो मैंने देखा ये तो खून बह रहा है। मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि वो टेंशन करेंगे। मैंने फटाफट उसमें टिश्यू वगैरह लगा के उसको रोकने की कोशिश करी। और फिर हम मतलब वो चोट जितनी ज़ोर से मैं गिरी थी उतना ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत रफ सरफेस थी, और उसपे बहुत सारे मतलब रिपेयर हो रही थी, तो वो भी पड़े हुए थे चीज़ें। तो वो तो कृपा ने मुझे बचा लिया, शायद बहुत छोटे में ही काट दिया। और मैं फिर किसी तरह से उठ के मैं सत्संग में चली गई। तो जब हमने देखा, तो मेरे पैर का जो मेरी चप्पल थी उसका लेफ्ट राइट वाला सोल निकल चुका था। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे, देखो सोल निकला, इससे तुम गिरी हो। लेकिन मैं तो राइट पैर में था, तो मैं फिर मैं लेफ्ट पैर में था, तो मैंने सोचा कि ये तो लेफ्ट पैर है और राइट पैर है, और मेरा का निकला, और मैं तो लेफ्ट से गिरी। तो मैंने फिर इतना सोचा नहीं, फिर सोचा ठीक है। फिर हमने फटाफट बैंडेज वगैरह लिए और लगाई, और मैं बस गुरु ने इतनी हिम्मत दी कि मैं सत्संग के लिए जा सकी। सत्संग में मैं जा तो मैं सोच रही थी कि सभी लोग प्रॉब्लम में होते हैं, तो लोग सब नीचे कोई बैठना मतलब कम ही लोग बैठ पाते हैं, और मैं हमेशा नीचे बैठती थी। तो मैं सोची थी आज मैं कैसे बैठूँगी ऊपर। तो हम टाइम से पहले ही पहुँच गए। तो मुझे एक आंटी है, पुरानी संगत है, वो पता नहीं मुझे क्यों बोली आप ना ऊपर यहाँ पर बैठ जाओ। और मैं ना ऊपर बैठ गई, इससे मुझे ऊपर बैठने का अवसर प्रदान हुआ। और मैं ऊपर बैठकर मैंने सत्संग, बहुत अच्छा था, गुरुवाणी बहुत अच्छी थी, बहुत ही दिवाली सत्संग था, बहुत आनंद आया। गुरु पाके बहुत अच्छे वो चल रहे थे। उसके बाद जब मैं सोचा कि मेरे पैर में, तो मैंने एक सत्संग भी, फिर मैंने सोचा सत्संग शेयर करना बनता है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बचाया। तो मैंने एक छोटा सा सत्संग शेयर किया कि गुरुपा का शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे जो है वो फ्रैक्चर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, इतनी जोर से मैं गिरी थी, लेकिन और कुछ भी नहीं हुआ था। बस ट्विस्ट हुआ। घर में आकर मैंने गुरुपा का जल प्रसाद मिलाकर चंदन टीका उसी सब जगह पे लगाया, और हाथ पे भी लगाया, और पैर पे भी लगाया, और पूरा हल्दी वाला दूध पिया। और सुबह जब मैं उठी, तो अभी मैं 3 बजे मैं उठी पूजा के लिए, तो मुझे बेटर फ़ील हो रहा था। अभी भी मुझे बेटर फ़ील हो रहा था। और फिर अभी मैंने नोट किया कि मेरे गर्दन में जो है वो लेफ़्ट साइड पे गर्दन में बहुत ज़्यादा से दर्द था, जो कि कभी जैसे गुद्दू का जल प्रसाद लगाने के बाद ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था दोबारा। तो वो मुझे लेफ़्ट पे जब मैं गिरी, तो मुझे ऐसा लगा गुरुपा ने मुझे इसीलिए गिराया, शायद वो गर्दन की नस जो है वो थोड़ी-सी इधर हो गई थी, वो ट्विस्ट हो गई थी, और वो शायद जगह पर आ गई है शायद, क्योंकि अभी थोड़ा-सा गर्दन का दर्द बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर अब पता चलेगा आगे। लेकिन गुरुपा जो करते हैं उसमें कोई ना कोई रीज़न होता है। और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तेरा कष्ट जो है बिल्कुल ही छोटे में काट दिया, तो चिंता मत कर, तू बिल्कुल मेरी प्यारी बेटी है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे सुनकर मैसेज पढ़कर बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप इस तरह से हम सबके संकट को काटते हैं। गुरुपा की जर्नी जो है वो 2023 दिसंबर 27 को हुई थी। उसी समय से गुरुपा की बहुत मेहर है। उससे पहले भी गुरुपा ने मुझे बहुत संकटों से बिना आने से पहले बचा लेते थे। कितने बार गिरने के बाद भी गुरुपा ने कभी भी चोट नहीं लगने दी ज़्यादा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अपनी संगत पर बहुत मेहर करते हैं। आपने मुझे मैसेज किया कि मैं तेरी शुक्राना की जो तू सेवा कर रही है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर देता हूँ, तो क्योंकि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और गुरुपा, आपकी बेटियाँ सभी आपकी प्यारी है। बस हम अच्छे कर्म करें, ताकि मेरे गुरुपा को हमारे संकट अपने ऊपर न लेने पड़े। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल शनिवार के दिन शनि ग्रह आपने टालने के लिए शुक्राना। उसके बाद सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना, सत्संग शेयर कराने के लिए शुक्राना। उसके बाद मेरे सारे कष्टों को दूर करने के लिए शुक्राना। आज हांगकांग में जो है टाइफून है, छुट्टी है, संडे के दिन बहुत बड़ा टाइफून है। इस टाइफून में जो है सब कुछ बंद पड़ा है, और बहुत हवा और महाआंधी है। तो गुरुपा से प्रार्थना है कि सबकी रक्षा करें, इस वेदर को भी कंट्रोल में रखें, ताकि किसी का भी कोई नुकसान ना हो, तो सबका भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई
लव यू। गुरुपाद सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपाद संगत जी और सुमन जी प्लीज क्षमा कर देना। गुरुपाद जिस तरह से आपने मुझे बताया इससे अगले आपकी सभी संगतों को बचाना, सबको जीवन और सही प्रदान करना। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपाद ऑलवेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज रविवार है, संडे है मेरे मालिक। शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरु जी। मैं छत पर बैठी हूँ गुरुपा की वडियाई करने के लिए और गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर सा बर्ड है, गुरुपा की याद दिला रहा है, जैसे गुरुपा के रूप में ही बैठा है सामने। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ये सूरज उगने वाला है। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा बोल रहे हैं अपना सत्संग रोज़ दे दिया कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ ही है। सही बात है, गुरुजी को पता है कि सब लोग कितना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और गुरुजी बोल रहे हैं जितना वो लोग कर रहे हैं उतनी मैं तेरी ऐश करवाऊँगा। तो मेरी सास जो गई हैं दूसरों के घर और अब मेरी ननद के घर पहुँची हैं चाची के साथ, तो वो फ़ोन कर कर के यही देख रही हैं कि इन लोगों के पास कुछ हुआ कि नहीं, इन लोगों के घर में कुछ कलेश हुआ कि नहीं, कुछ लगा कि नहीं, कोई बीमार हुआ कि नहीं। पर मैं तो हँस हँस के उनसे बातें कर रही थी। भले कल मेरे घर में कलेश था, मुझे प्रॉब्लम थी, टेंशन भी हो रही थी 2 दिन से, तो गुरुजी ने वो मुझे शो करने नहीं दी। तो वो भी हैरान हो गई कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। गुरुजी मेरी बेटी की भी रक्षा कर रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। गुरुजी देख लीजिएगा, पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक उन लोगों ने किया है, 2 दिन से वो लड़के बैठी हुई है। पर ठीक है, थोड़ी नॉर्मल है। मेरी कृपा करना। और मेरी बेटी को भी कल ले गए हैं, वो चाची का बेटा आया था उसको ले गया है मेरी ननद के पास छोड़ने, मेरी सास और चाची सास को। तो गुरुपा देख लीजिए, आए तो उसको कुछ खिला विलाना दिया हो। गुरुपा आप ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। मैंने भेजा ही आपको उसके साथ, उसके बैग में आपका स्वरूप डाल के भेजा था। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आप ही रक्षा कर रहे होंगे। और उसके लिए जो आप सत्संग भेज रहे हैं बेटी के लिए, तो मैं वो सब सत्संग सुन तो रही हूँ गुरुपा। बाकी देख लीजिएगा, आप ही रक्षा करेंगे। मेरी बड़ी बेटी की रक्षा कीजिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, उसकी तरफ से। मेरी जमाई की तरफ से शुक्राना, मेरी बीच वाली बेटी रुशिका की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बेटी आर्या की तरफ से शुक्राना। बस अब आए तो उसके ऊपर किसी चीज़ का असर ना हो मेरे गुरुपा, आप उसका सब कष्ट काट दिया हो। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना गुरुपा। आप ही मेरे इस घर को चला रहे हैं, आप ही रक्षा कर रहे हैं। बाकी जो गुरुपा आप बोल रहे हैं थर्ड पार्टी और जो भी लेडीज़ हैं हमारे पीछे पड़ी हुई है, गुरुपा उससे छुटकारा दिलाइए, वो हमारे घर का कुछ ना ले सके, मेरे पति से भी दूर हो जाए। गुरुपा जो फंसाना चाहती है मेरे पति को, देख लीजिए। आप बोल रहे हैं उससे अपने पति की रक्षा का। गुरुपा कैसे करूं, क्या करूं, आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। मैं तो सोच रही थी पुलिस केस करने का, पर गुरुपा सबकी इज्जत उछलेगी इसमें। अब आप अंदर ही इंट्यूशन उसको दीजिए कि खुद ही वो डर के दूर हो जाए मेरे मालिक। बाकी जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पति भोले हैं, उनके ऊपर खिला पिला के उसने ये सब गेम किया है, मेरी सास और ननद ने और उन लोगों ने जो लोग मेरे घर को तोड़ना चाहते थे। वो सोचते थे कि ऐसे इसके पीछे किसी को लगा देंगे तो ये चुपचाप चली जाएगी। पर देखिए गुरुपा कितने सारे कबूतर हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी देखिए पूरे आकाश में फैल गए हैं। वाह मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। मेरी तबीयत भी गुरु जी ठीक कर रहे हैं, मेरा मन गुरुपा ही ठीक रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मेरे पति को संभाल रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पति मेरे को सब बताएं, मेरी हेल्प करें, मेरी हेल्प लें। बाकी गुरुपा एक एक बात को मुझे बताएं और एक भी पैसा किसी औरत को ना दे, ना मेरी सास को, ना मेरी ननद को और ना ही दूसरी औरत को गुरुपा। तो वो लोग खुद सब उनकी लाइफ से भागे निकल कर। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पति डरना छोड़ दें गुरुपा, उनको अपनी शरण में ले लो, वो आपके सत्संग में भी आया करें, आपका प्रसाद खाया करें गुरुपा। उनकी बुद्धि ठीक कर दो, मेरे बच्चों को, मेरे पति को मेरे साथ सत्संग में बुलाना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। देख लीजिए गुरुपा, मेरी मम्मी की रक्षा करना, उनकी तबीयत ठीक रखना, उनके मन को ठीक रखना गुरुपा, उनको अकेलापन नहीं लगे मेरे मालिक। देख लीजिएगा, शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। मैं वर्किंग हूँ, मतलब मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ और बहुत अच्छा चलता था मेरा। अब बीच में काफ़ी डाउन हो गया था और मैंने गुरुजी से मतलब डे 1 से मैं यही बोल रही थी कि बस ऑफ कोर्स मेरे बच्चे तो दोनों काम कर रहे हैं अभी, तो मैं यही
गुरुजी को अरदास कर रही थी कि मुझे हाथ फैलाना ना पड़े मेरे बच्चों के सामने, मुझे आखिर तक खुद के पैसे यूज़ करना है, जो भी है जब भी चाहिए मेरे हाथ में मेरे पैसे होना चाहिए, बस बच्चे अपने आप अपनी ज़िंदगी संवार। ये मेरी अरदास है, हमेशा थी। और उस टाइम पे तो मैं साई को बोलती थी। अब जब से गुरुजी ने हाथ थामा, अब मैं गुरुजी को एक ही बोलती हूँ बस। और गुरुजी ने जो मेरे ओल्ड क्लाइंट्स, अच्छे क्लाइंट्स बीच में मतलब चले गए थे, अब वही ओल्ड क्लाइंट्स वापस आ गए। गुरुजी हमें हमारे अच्छे क्लाइंट्स दे रहे हैं, तो मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होता है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं सुमन आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। समय हुआ है 6 बजे हैं पूरे। 20 तारीख है आज। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। संगत जी, कई महीने हो गए, 4-5 महीने मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। वैसे तो मैंने गुरुपा को बहुत बार शुक्राना किया, पर मैं ऐसे शेयर नहीं कर पाई। मैंने गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ कि बाबा मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, अभी कई महीने पहले मैं बहुत बीमार हुई, बहुत चक्कर आना, पैरों में दर्द, पेट में गैस का गोला बन गया। वो भी इतना भयंकर कि सूंडी से लेके नीचे तक और ऊपर कलेजे तक वो पूरा घूम रहा था संगत जी। और चक्कर भी इतने भयंकर कि ना लेट सकती ना बैठ सकती, कुछ नहीं। संगत जी, रात को जब ये चक्कर एकदम मैं सोई हुई, कोई 2-2:30 बज रहे थे। ये अपने काम से आए। जैसे ही मैंने गेट खोल कर मैं संगत जी मैं लेटी, मुझे इतना भयंकर चक्कर, पूरा घर घूमने लगा, पूरा घर। मैं 1 सेकंड के लिए भी मतलब लेट नहीं सकती थी संगत जी, इतना चक्कर। फिर ऊपर से पैरों में इतना भयंकर दर्द और पेट में गैस का गोला। पहले तो मैंने ये कहना कि चक्कर आ रहा है तो तू ऐसे कर, पानी पी ले। मैंने खूब पेट भर के पानी, मतलब कितने 10 बार 8-10 7-8 गिलास पानी पीती गई। खूब पेट एकदम फूल गया मेरा। चक्कर ही बंद नहीं हो रहा था, ऊपर से लेट तो सकती ही नहीं थी। संगत जी, मैंने अब जैसे ही ज़्यादा पेट भर गया तो मेरे को फिर उल्टी आई। फिर मैंने उल्टी करी, मैं फिर पलंग पे जाके बैठी। ये कहने लगे, मेरे अंकल जी कहने लगे कि तू ऐसा कर, तू लेट जा। अब मैंने कोशिश करी कि मैं लेटूँ, मगर नहीं, लेट ही नहीं सकती थी, इतना चक्कर घूम रहा था दिन बहुत। संगत जी मैं बैठ गई। बैठे बैठे मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, कंटिन्यू, रुका ही नहीं 1 सेकंड के लिए। बैठे बैठे गुरु मंत्र मेरा चल रहा था। संगत जी, बस मेरी आँख बैठे बैठे लगी थी कि इतने में मेरे गुरुपा का हमेशा मैसेज आता था, बेटी तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरा डॉक्टर हूँ। लेकिन संगत जी, जब मेरी आँख लगी तो तुरंत ही गुरुपा एक बड़ी सी तितली रूप में आए। मुझे साफ साफ नज़र आता संगत जी, जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, उस जगह पर बीच में एकदम वो तितली बीच में आके बैठ गई मेरे। बैठ के फिर 1-2 सेकंड बैठ के फिर वो मतलब चली गई।
और मन में यही आ रहा था कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना। लेकिन संगत जी चक्कर इतना भयंकर था, सुबह मैंने जैसे तैसे सुबह तक निकाली। फिर इन्होंने ग्लूकोज दिया, पता नहीं क्या क्या पिलाया मुझे। फिर जब 9 साढ़े 9 बज गए सुबह के, तो मैंने फिर ये कहने लगे चल तेरे को डॉक्टर के लेके चलता हूँ, ऐसे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इधर से पेट में गोला बना हुआ था, पेट मतलब दर्द रुक ही नहीं रहा था, तड़प रही थी दर्द के मारे। संगत जी फिर मैं मंदिर के सामने, अपने घर में मेरा मंदिर है जो, मैंने गुरु पा के हाथ जोड़े, मेरे बाबा मेरे साथ चलो, आप देख लेना जो भी होगा, आप देख लेना बाबा। संगत जी ये कह के मैं कि आपको मेरे साथ चलना है। मैं बाहर निकली, डॉक्टर के पास पहुंचे, पास में ही है हमारे डॉक्टर। संगत जी वहाँ पे गेट पे जो बोर्ड लगे होते हैं हॉस्पिटल में, 7 नंबर, 777, 5 का, 9 का, मतलब ये सब नंबर, 7 की तो ब्लेसिंग चली रही थी। जी डॉक्टर ने जब चेक करा तो कह दिया सर्वाइकल है, सर्वाइकल की वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। गैस के गोला के लिए बोलने लगा, 3-4 दिन इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए उसने। और फिर उसके बाद रोज डेली 10-12 दिन मेरी दवाई चली, रोज इंजेक्शन 4-4, 3-3, 4-4 इंजेक्शन रोज लगा। एक दिन तो 6 इंजेक्शन लगाए उनने मेरे, 1-2 इंजेक्शन रोज डेली लग रहे थे। संगत जी फिर उसके बाद मैं घर में कोई था नहीं करने के लिए, बेटी मेरी ऑफिस चली जाती थी, बेटा भी, पीछे मेरा कौन करता, इसलिए मुझे बड़ी बेटी के जाना पड़ा। वहाँ पे 12-13 दिन रही, वहीं मेरा इलाज चला। उसके बाद मेरी छोटी बेटी के बच्चा होने वाला था। संगत जी 12-13 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक तो नहीं, लेकिन क्या करती, मुझे जाना पड़ा, क्योंकि उसकी सास अकेली थी, कोई करने वाला नहीं था। क्योंकि जापे का तो आप समझते हो कि एक जना और चाहिए होता है। उसका फ़ोन आया कि मम्मी आओ। अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मुझे वहाँ जाना पड़ा। संगत जी जैसे हम 2 तारीख को गए, रात को मेरा बेटा छोड़कर आया, गाड़ी का नंबर भी 7 था। उससे पहले संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम अपना एक्सरा वो करवाओ। मैं वहाँ पे करवाने गई अल्ट्रासाउंड। फिर उसके बिल्कुल उसके जो हॉस्पिटल था उसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, उसमें भोले बाबा की मूर्ति थी। मैं कहा जय हो बाबा, आप तो अंग संग है मेरे। और बोर्ड पे वहाँ पे भी नर्सिंग होम में, वहाँ पे भी 7 नंबर, 777 वहाँ पे भी था जी। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरा इलाज चलता रहा। मैं अपनी बेटी के गई 3 तारीख को सुबह ही। मेरी बेटी की तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी तो वो हॉस्पिटल चली गई मेरे दामाद के साथ। गुरुपा के आशीर्वाद से उसकी प्यारी सी बेटी हुई। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना। जब हम रास्ते में जा रहे थे संगत जी, मैं और मेरी समधन, तो बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी। तो 2 गाड़ी तो थी वहाँ पे, और जो ब्लेसिंग मिल रही थी वो अलग। हॉस्पिटल पहुँचने के साथ ही हमें खबर मिली कि लड़की हुई है। मैंने तो अपने गुरुपा को, मेरी समधन ने और मैंने, हम दोनों ने अपने मन में खूब शुक्राना किया गुरुपा का। पर संगत जी मैं शेयर नहीं कर पाई थी, मैं इसलिए अपने गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ संगत जी। फिर उसके होने के बाद मैं घर वापस, जिस दिन हमें उसके घर से वापस आना था, उस दिन मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई, फिर बहुत चक्कर आया। संगत जी इंजेक्शन से भी कम से कम नहीं तो मुझे 16-17 इंजेक्शन लगे, मगर इंजेक्शन 4-4 दिन में गैस बनी जा रही है, गोला पता नहीं क्या डॉक्टर थे, समझ ही नहीं आया मेरे को। फिर मेरे बेटे को वो आया, मेरे दामाद भी कहने लगे कि मम्मी तुम कैसे डॉक्टर को दिखा रही हो, इससे पूछो तो सही कि अभी तक तुम ठीक नहीं हुई हो, इतने दिन हो गए, किस चीज़ का इलाज कर रहा है ये, तुम्हें तो फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल भी चक्कर पे चक्कर आ रहा है। फिर मेरे दामाद ने, जिनको वो दिखाते होंगे डॉक्टर को, उन्होंने वहाँ का पता बताया। कहने लगे
मेरे बेटे से कि ऐसा कर तू वहाँ पहुँच मम्मी को लेके, मैं भी आता हूँ। फिर वो डॉक्टर के पास पहुँचे, कोई नवीन शादरी में डॉक्टर है, वहाँ पे लेके गए। उन्होंने दिखाया तो वो कहना चेक किया उसने, डॉक्टर ने, संगत जी वहाँ पे भी 7 नंबर की ब्लेसिंग, और जो मेरे बेटे की स्कूटी है उसमें भी 7 नंबर है गुरुपा की कृपा से। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपकी बड़ी कृपा है। संगत जी फिर उन्हें इलाज देखा, देखकर वो कहने लगा सर्वाइकल वगैरह कुछ भी नहीं है इनको, बट टेंशन लेती हैं, चिंता ज़्यादा करती हैं बच्चों की, और नींद पूरी नहीं होती है, इस वजह से ये सब हो रहा है। अब बस इनके यहाँ गैस बनती है पेट में बहुत ज़्यादा। मैंने बताया, मैंने कहा मेरे पैरों में भी बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है ये ब्लैक मैजिक की वजह से। मेरे शरीर में संगत जी कुछ नहीं बचा, कुछ भी, बस मेरे गुरुपा का इतना आशीर्वाद है, उन्होंने न्यू लाइफ ब्रेस किया मुझे। कहते हैं तू चिंता ना कर, तेरा प्यो बैठा है, करने वाले करते रहेंगे, तेरा प्यो बचाता रहेगा। लेकिन अब उनकी बारी आ गई है, अब नहीं बचेगा कोई भी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कम से कम 1 हफ्ते वहाँ दवाई मेरी वहाँ से चली, फिर जाके थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन आज भी 20 तारीख है, मैं आज भी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। मेरे ब्लैक मैजिक ने मेरे पूरे शरीर को खोखला कर दिया। मैं चलती फिरती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं हिल रही हूँ, बैठती हूँ तो ऐसा लगता है हिल रही हूँ, लेटती हूँ तो ऐसा लगता है हिल रही हूँ। गुरुपा ने इतने कष्ट काटे हैं संगत जी। रातों को आके मेरे सपने में मैसेज सुना सुना के कहते हैं बेटी ये सत्संग सुन, तेरे माड़े तेरे कष्ट कटेंगे। सपने में आके ना जाने कितने भयंकर भयंकर कष्ट काटे हैं बच्चों के, मेरे पति अंकल के। मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा जैसे मुझे इतना ठीक किया, बाबा से सब पूरी संगत को ठीक करना, कभी किसी के घर में कोई परेशानी ना आए बाबा। संगत जी मैं अपने गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ बाबा, जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई है तो वो मुझे क्षमा कर दे बाबा। अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ, जाने अनजाने जिस भी इंसान का मेरे से बुरा हुआ पिछले जन्मों में, इस जन्म में, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। अपने बाबा से क्षमा मांगती हूँ, नाक रगड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, बाबा मुझे क्षमा कर देना। अपने पति अंकल की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, बेटे की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, बेटियों के, उनके बच्चे, उनके परिवारों की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, अपने दामादों की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, भाई के परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, भाभी के परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, सासू माँ के परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने जो भी मुझसे भूल हुई मैं सब क्षमा मांगती हूँ बाबा, और आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ। पल पल का शुक्राना है, आपने मुझे बहुत 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 दिया बाबा, मुझे अपने श्री चरणों में जगह दी बाबा, मेरा जीवन सफल हो गया। संगत जी हर पल का शुक्राना है बाबा का, इतनी बेशुमार ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि जी खुशी से भर जाता है बाप। संगत जी इसी के साथ में शुक्राना मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सुमन आंटी जी, आप ये सत्संग शेयर करें, जो ये सुने उनका भी गुरुपा भला करें, और जो सुमन आंटी मेरा सत्संग शेयर करें उनका भी भला करें, उनके समस्त परिवार का भला करें, सबके परिवारों का, मेरी पूरी संगत परिवार का बाबा भला करें, जिनका कोई नहीं इस दुनिया में उनका भला करे, पूरे संसार का भला हो, पूरे संसार का, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का भला हो। सुमन आंटी को खूब ब्लेसिंग दे बाबा,
नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सरबत्ता भला, सरबत्ता भला, सरबत्ता भला। जय हो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।